Assalamu alaikum to all of you. So today we have a very important lecture and session. This is about revision of whatever we have done so far. So this is lecture number 14, and in this lecture I will give you the revision from session 1 to session 6, and then there will be another lecture after this one, and that lecture I will give you revision from class session 7 to session 13 is from lecture number 7 to lecture number 13. So these two lectures of today are very important, and I would like all of you to attend these two lectures. Remember, I have provided you the soft copy of all or maximum lectures, and inshallah very soon, maybe this week, I may provide the hard copies to the department, and you can collect from the department. So let's start. Can you hear my voice clearly? Yes, sir. Okay. If you have any problem regarding today's lecture, so you can ask me as well. So let's begin. Remember, we started this subject uh, and almost 2 months back, from I think 8th of August, when the session started, this new semester started. And you, I think, first time you're studying semantics. And what is semantics? I have already told you, and today I will give you the revision. So remember, the aim and objective of this course is what? The aim of this course is to introduce to you to the basic concepts of semantics. Basic concepts. What are the basic concepts of semantics? And as I told you, there's semantics deals with meanings. Semantics deals with meanings. Remember, it is you can say branch of linguistics. Linguistic is very wide. MA English. We do MA English either in literature or linguistics. तो लिटरेचर में जो होता है वो अदब होता है, like poetry, novels, fiction, history. These all are the parts of American literature, modern literature. These all are the parts of literature. And when we study or we talk about linguistics, so we have different parts, types of linguistics, different you know uh, kinds of linguistics. फिर linguistics के अंदर हमारे पास मज़ीद चीज़ें होती है, like morphology that deals with word formation, phonetics that deal with how to produce sounds, phonology that deals with sound system, the grammar, pedagogical grammar that deals with how to teach grammar, and one subject is semantics, and semantics deals with meanings. A word has more than one meaning, a sentence have more than one interpretation, a phrase has more than one meaning. How to get those meaning, how to understand those meaning, this is something we learn through semantics, and I have told you many things in semantics which will make things easy for you or understandable to you. By the end of this course, students will be able to conceptualize the relationship between words and their meanings. As I told you, if you see the meaning of any words, आपको गालिबन मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि if somebody asks you what is the meaning of an individual word, कि एक individual word के meaning क्या है, आपको कोई word लिख के दे दिया उन्होंने और कहा कि इसकी meaning बताएं, so what will be your answer? आपने इसको कैसे बताना होगा? दे मे टेस्ट यू, वो आपको हो सकता है आपका टेस्ट करें कि यार आपने सेमेंटिक्स पढ़ा तो आप जवाब क्या देंगे, तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो अभी आप लोगों को जवाब नहीं पता, इसलिए इसका मतलब है आप लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की होंगी या आप भूल चुके होंगे. सो योर आंसर शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट यूज इट इन द सेंटेंस, आई विल टेल यू देन. पहले आप इसको जुमले के अंदर इस्तेमाल करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है. अगर आप जुमले के अंदर इस्तेमाल किए बगैर ही बता देंगे, देन इट मीन्स यू हैव मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, राइट? मतलब आप क्या बताएंगे उसकी मीनिंग? एक वर्ड है, उसके 70 से ज़्यादा मीनिंग्स हैं. देयर इज़ अ वर्ड, फॉर एग्जांपल गेट. If you remember, in the previous classes I have also shown you some examples, and I'm just giving you right now again that example. uh, Let me share it to you. There is one word, for example, get.
It is a very common word, बहुत आम सा word है, and normally students know one or two meaning of get. Students को ज़्यादा उसकी एक या दो meaning का पता होगा, इससे ज़्यादा उसे नहीं पता होगा. Can you see the screen here? Dictionary आपको नजर आ रही है? Yes, sir. अब आप देखें, ये get एक word है. अगर कोई आपसे पूछता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट, तो आप क्या कहेंगे? हासिल करना. और वो इस्तेमाल किसी और पे वो कर देता है इस्तेमाल इसमें, आई गॉट दिस कॉल्ड ऑफ, या शी गेट्स रियली बैड हेडेक्स. तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो उससे बहुत सर के दर्द हासिल हो रहे हैं, या आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड. इसका मतलब थोड़ी है कि मेरे ख्याल है कि मुझे कोल्ड हासिल यानी कि जुकाम हासिल हो रहा है. अब यहाँ इसका मतलब है आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. To start to develop an illness or to suffer from a pain, that is also get. तो आपके सामने you can see here how many meanings are there. First meaning तो अक्सर लोगों को पता है to receive something, ठीक है. Second meaning भी इसकी है to obtain something, यानी कि receive करना या obtain करना, हासिल करना. Obtain करना ज़्यादा लोगों को पता है. But what about other meanings? To buy something. What did you get? Where did you get this skirt? इसका मतलब क्या है कि आपने ये कहाँ से खरीदा. ये नहीं कि आपने कहाँ से हासिल किया. हासिल क्या गया मतलब खरीदा. And then fourth meaning, fifth meaning bring, sixth meaning mark, grade, seventh meaning illness, meaning number 8 punishment. Then internet, phone, broadcast में भी इस्तेमाल होता है. Contact, arrive भी इसकी एक meaning है. Move, travel, ठीक है. Meaning number 13 क्या है? Get to use a bus, taxi, plane वगैरह में चढ़ने के लिए, उतरने के लिए. State, condition के लिए भी इस्तेमाल होता है. Is getting worse, is getting better. Then 15, 16, 17, meaning number 17, meaning number 18, start के लिए भी to start doing something. I got talking to her, we need to get going soon. Opportunity के लिए, meal के लिए, यानी खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. We are getting the lunch, it means we are eating lunch. Telephone door, catch it. So you can see over here how many meanings are there? 27 simple meanings. ये 27 meanings है जो कि आपको simply मिलेंगे इसके. फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल idiom में हो रहा है. How many idioms? 3, 4, 5, 6, 7, and you can see there are a large number of idioms. With 8-10 idioms ये हो गए, 37 ये हो गए. फिर you can see phrasal verbs, ये सब get से बने हुए हैं. Get ahead, get along, and they have different meanings. और कितनी बड़ी तादाद है आपके सामने. So इस तरह से more than 60 meanings हैं, यानी कि get is giving us more than 60 meanings. 37 आपके पास सिंपल मीनिंग या 27, उसके बाद आपके पास इडियम में भी इस्तेमाल हो रहा है, एंड देन फ्रेजल वर्ब. सो दीज ऑल आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ vocabulary. Remember idioms, phrasal words, one word, they all come in the category of vocabulary. ये सब vocabulary की कैटेगरी में आते हैं. तो इससे पता क्या चला कि this one word has many meanings, और इसको semantics में हम क्या कहते हैं वही मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिसी में, right? So if somebody asks you what is the meaning of get, you cannot say it means this and that. आपका जवाब होगा use it in a sentence, then I'll tell you. फिर वो इस्तेमाल करेगा और फिर आप उसको इस्तेमाल के लिहाज से उसको मीनिंग बताएंगे. Now the meaning of get is here this one. It is a remember बड़े-बड़े एग्जाम्स में या इंटरव्यू में such kind of questions are asked. Why? Because they want to check students' knowledge. They want to check their sharp-mindedness. So by the end of this course, student will be able to conceptualize the relationship between words and their meanings. Now, what is semantics? This is what I have just described. It is one of the important branches of linguistics that deals with the meaning of words, phrases, and sentences. Remember, semantics deals with meanings of words, phrases, and sentences or clauses, and it is one of the very important branches of linguistics. Linguistics की बहुत सारी branches जिसमें ये एक अहम branch है. And it deals with the reading comprehension of the reader as to how they understand others and their interpretations. Interpretation एक sentence की एक से ज़्यादा हो सकती है. And remember, if you study semantics, then you will be able to understand, or you will be able to do more than one interpretations. Hidden meaning. There are many sentences which have hidden meanings, and very few people understand those hidden meanings. So if you study semantics, then you will speak very carefully, you will write very carefully, because you will know about the impact of your sentences. You will know about the effect of your conversation. जब आप semantics को study करेंगे तो उससे ये फायदा होगा आपको कि आप जो बोलेंगे तो बहुत सोच कर बोलेंगे. आप जो जुमले इस्तेमाल करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे. क्यों? आपको उसके
क्या कहेंगे, उसके हिडन मीनिंग्स का आपको पता होगा, आपको उसके इम्पैक्ट का पता होगा, आपको उसके जो असर है उसका पता होगा कि ये हो सकता है अगर मैं ये बोलूँगा तो, या ये बोलूँगी तो. So semantics construct a relation between adjoining words and clarifies the sense of a sentence, whether the meanings of words are literal or figurative. Now there are many occasions when we use words figuratively. हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, but there are occasions when we use words figuratively. We use definitely normally literal words with their literal meanings, and of course quantitative meaning. फिर collocation का इस्तेमाल इसमें होता है. तो collocation अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो फनी लैंग्वेज बन जाएगी. इट विल बिकम अ फनी लैंग्वेज मींस इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू नेटिव स्पीकर्स. जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में अगर आप किसी से कहते हैं पंखा खोल दो, तो आप उसको यूं नहीं कह सकते कि ओपन द फैन. आपने उसे क्या कहना है, स्विच ऑन द फैन. स्विच ऑन द फैन मीन्स पंखा खोल दो. ठीक है, अगर आप इसको तर्जुमा करने बैठे तो आप कहेंगे ओपन द फैन, तो वो बेचारा जो क्या ओपन करेगा. इस तरह से अगर आप कहेंगे नलका बंद कर, तो आप नहीं कहते क्लोज द टेप. दरवाजा तो क्लोज हो सकता है, लेकिन नलके के लिए क्लोज इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर नलका टेप you have to use turn of the tape. So this is word collocation. Examples I've just given you: open the fan, close the fan. These are wrong sentences and we use in our everyday life, which are wrong. My heart has become garden with pleasure. हम उर्दू में कहते हैं ना कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो ये एक idiom है उर्दू में. In English we can't say like this, my heart has become garden with pleasure. This is wrong. I will make happiness enter in your heart. मैं तुम्हारे कहते हैं ना, हम नॉर्मली उर्दू में कहते हैं कि मैं आपके दिल में खुशी दाखिल करूंगा. इसका ये मतलब थोड़ी कि I will make happiness in enter in your heart. This is a wrong sentence. So these are incorrect sentences which are semantically wrong. Grammatically याद रखिएगा ये सारे जुमले दुरुस्त हैं. Grammatically these all sentences are correct, but semantically they are wrong. Are you getting me? Grammatically they are correct. ग्रामेटिकली देख लें, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है. सब्जेक्ट वर्ब भी है आपके पास, सबकी जो कंस्ट्रक्शन भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है. बट वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? द प्रॉब्लम लाई इन मीनिंग, सिमेंटिकली, कॉलोकेशन, कॉनोटेटिव मीनिंग. आई विल, अच्छा, बुलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट. अब ये बुलेट्स का मतलब गोलियां, वॉकिंग चलना. प्रेसिडेंट सदर को कहते हैं, तो क्या है, सदर में गोलियां चल रही हैं. अब वो सदर, वो प्रेसिडेंट वाला सदर थोड़ी है. सदर तो एक जगह का नाम है. ठीक है. So you have to understand the sense, then you have to make the sentence. She can't bear children. It double meaning it has. Do you take interest in interest? Word play. He eats 2 tablets after eating lunch. उर्दू में हम कहते हैं ना कि यार गोलियां खा लो, दवाई खा लो. दवाई के लिए हम ईट इस्तेमाल नहीं करेंगे. खाना खाने के लिए, खाना के लिए तो इस्तेमाल कर लेंगे ईट. बट फॉर मेडिसिन वी डोंट यूज ईट, वी यूज टेक. ठीक है. ये पता कैसे चलेगा? व्हेन वी स्टडी when we study collocation which is a part of semantics. तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स है सब इनकरेक्ट है. सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ग्रामेटिकली ये बिल्कुल दुरुस्त हैं. दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रामेटिकली, बट दे आर सेमेंटिकली रॉन्ग. किसी को कुछ कहना है? Okay, then function of semantics. Remember, we are doing revision. Function of semantics. So the purpose of semantics is to propose exact meanings of words and phrases and remove confusion. कुछ जो confusion होती है उसको दूर करना है. And this confusion might lead readers to believe a word has many possible meanings. Okay, semantics means makes a relationship between a word and the sentence through their meanings. And semantics enable readers to explore a sense of the meaning of a word, phrase, or sentence. So reader explores a sense. उसको sense समझना होता है. याद रखिएगा, sense is important, not the meaning. If you only go through the meanings, then you can get something different, but you have to understand the sense. मिसाल के तौर पर एक जुमला है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, कि मैंने कहा कि डेविड मर चुका है, उसके बारे में बात मत करो. डेविड मर चुका है, उसके बारे में बात मत करो. अब मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँगा मीनिंग टू मीनिंग, तो मैं कहूँगा डेविड हैज डाइड, डोंट टॉक अबाउट इट. डेविड हैज डाइड, डोंट टॉक अबाउट इट. मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये भी कह देंगे ना, डेविड इज डेड. डेविड इज डेड, डोंट टॉक अबाउट हिम. इट इज इनफ एंड इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल. ये ज्यादा प्रैक्टिकल है. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
डेविड इज डेड, डोंट टॉक अबाउट हिम. सो डेविड इज डेड, इसका ये मतलब नहीं कि डेविड मुर्दा है या डेविड जो है मरा हुआ है. इसका मतलब है वो मर चुका है. ठीक है. तो हर जगह मीनिंग वाइज नहीं जाएंगे. वी हैव चेक द सेंस एज वेल. Now, some important types of semantics with examples. So you can see semantics like lexical semantics, phrasal semantics, connotative semantics, denotative semantics. Lexical deals with words. Phrasal semantics deals with phrases, group of words. Connotative semantics deals with connotative meaning. Normally, इसका इस्तेमाल literature में बहुत ज़्यादा होता है. Usually, poets use this type of meaning in their poetry. Poets and novelists and different types of other literary writers, they use this kind of uh, uh, meaning because they know very well about such things. Even in our ordinary day life we use, but it is not very much used in creative writing and literary writing. Denotative meaning is something that we normally use. It suggests the literal, explicit or dictionary meanings of the words without using associated meaning. इसका associated meanings नहीं होती, साथ simple literal जो meaning होती है वो इस्तेमाल होती है. टाइप्स ऑफ मीनिंग, देन हमारे पास एक लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मीनिंग के, कि कौन कौन सी टाइप्स होती है मीनिंग की, हमें मालूम होना चाहिए. सो रिमेंबर, नॉर्मली डिक्शनरीज नॉर्मल डिक्शनरीज विल गिव यू सिंपल बेसिक मीनिंग. अगर आप कोई लोकल डिक्शनरी उठाएंगे तो नॉर्मली आपको उसमें बेसिक मीनिंग वगैरह मिल जाएगी. आपको चंद एक जगह पॉलीसेमी में मल्टीपल मीनिंग्स मिलेंगी, but normally you'll find basic meaning without any examples of usage. So that's why I asked you that you must study advanced learners dictionary like Oxford advanced learners, Longman advanced learners, Collins की dictionary आप इस्तेमाल कर सकते हैं, Webster की dictionary आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. These are the dictionary. Or for collocation you can use Oxford collocation dictionary. ये कुछ dictionaries है जिनको आप use कर सकते हैं, और इस पे इंशाल्लाह एक क्लास भी लेने का इरादा रखता हूँ, how to use dictionary, how to consult a dictionary. This is something I will teach you, and what are the types of dictionary which you must use at this level. इस पे इंशाल्लाह सेशन करूँगा मैं अनकरीब, थोड़ी इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ. Then I will inshallah give you the session, and it will be a very important session not only from semantics point of view but from everyday life point of view as well. तो बेसिक मीनिंग आपके पास पहले होती है, उसके बाद आप जाते हैं मल्टीपल मीनिंग्स पर, फिर उसके बाद आप जाते हैं देखते हैं कि इसका सिनोनिम कौन कौन, सिनोनिम मींस सिनोनिम्स क्या क्या है. कॉलोकेशन देखते हैं कि इसके साथ कौन सा वर्ड किस तरह से फिट होता है. ठीक है. किस वर्ड, विच वर्ड फिट्स विद विच वर्ड, कौन से नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाना हो, कौन से वर्ब के साथ कौन से नाउन लगाना हो, कौन सा नाउन के साथ किस एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना जरूरी है, और कौन से वर्ब के साथ कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल हो सकता है. So this is something that we learn through collocation. Connotation means associated meanings, यानी कि which cultural association होती है कुछ. There are things which are related to culture, and there are things which are related to some especially culture, religious culture and countries culture. उसको भी हम आगे देखेंगे थोड़ा रिवीजन में. And then last one is register, that is called technical meaning. So these are different types of meanings that we have discussed in detail. बाकायदा इन पे एक एक क्लासेस भी हुई है, कॉलोकेशन पे, कॉनोटेशन पे, रजिस्टर पे, डिटेल में. आगे भी इसको थोड़ा सा बता दूंगा. अब connotation क्या है? तो I've already told you connotation refers to a meaning that is implied by a word apart from the thing which is describes clearly. Words carry cultural and emotional associations or meanings in order to their literal meaning. मैंने आपसे कहा था कि there are many words which have cultural associations, emotional and cultural. They may be from religious point of view, or they may be from countries or local cultures point of view. So we must know about them. For example, एक बहुत सी आम सी मिसाल है कि हम गर्ल फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, इसका मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आम जगह, कुछ जगहों पे आम है, लोगों को पता ही नहीं है. So these both words are taboo, taboo, taboo in our context. Why? Because in our context this is absolutely immoral, but in western context this is very common. They have no problem at all. वहाँ पे इसके साथ कोई मसला नहीं है. ठीक है. तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्टेशन इसकी क्या है? इट इज पॉजिटिव. इन आवर कॉन्टेक्स्ट इट इज हाईली नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव आई वुड से. तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, तो कहते हैं ही इज माय बॉयफ्रेंड और शी इज माय गर्लफ्रेंड. दिस इज रॉन्ग. वो सिर्फ आपके क्लास फेलो होते हैं, नॉट फ्रेंड. Right? Remember, there is no friendship between two
opposite gender. So they can be class fellows of each other, they can be colleagues of each other, they can be neighbors of each other, right? But they can never be in our context, they can never be friends of each other. This is wrong. तो ये कॉन्ट्रेक्टिव मीनिंग है. इसी तरह से हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, हम लोग एक वर्ड है शिट, SHIT, शिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? जब भी थोड़ा गुस्सा आता है शिट कहते हैं, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है, एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग शिट. आप अगर उसको डिक्शनरी में जाके देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर. कैन यू सी द डिक्शनरी? नजर आ रही है डिक्शनरी? आप लोगों को नजर आ रही है? Yes, sir. अब देखिए शिट यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया और सामने आपको नजर आ गया ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? टेबू. ठीक है, नजर आ रहा है? टेबू एंड स्लैंग. टेबू का मतलब होता है बेहुदा लफ्ज, स्लैंग का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे थका हुआ, जिसे हम कहते हैं ना गिरा हुआ लफ्ज होता है. स्लैंग का इस्तेमाल वेरी वेरी इनफॉर्मल उसमें वे में किया जाता है. सो दिस टेबू इज रॉन्ग. तो क्या कह रहा है? स्वेयर वर्ड, गाली गलौज वाला वर्ड दैट मेनी पीपल फाइंड ऑफेंसिव, जिनको बुरा लगता है, यूज टू शो दैट यू आर एंग्री और अनॉयड. तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं, नहीं पता होता है बहुत सौ को, तो लोग कर रहे होते हैं. सो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच वर्ड. ये हमें इसी तरह से आप देखिएगा कोई चीज़ आप खरीदते हैं, तो आपने खरीदी और उसकी कीमत कम थी, क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे दिस क्लॉथिंग इज चीप. आप वहाँ पे कहेंगे दिस क्लॉथिंग इज इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल. If you say cheap, so cheap also has a connotation of negative connotation. Cheap means not only less in price but also less in quality. तो वो फिर गलत हो जाएगा. तो आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होगा? इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल. इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल दोनों मीन्स लेस इन प्राइस बट नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी. टाइप्स ऑफ कॉन्नोटेशन में आपके पास कौन कौन से टाइप्स है? यू हैव पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव, न्यूट्रल कॉन्नोटेशन भी होता है, ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्नोटेशंस. इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? मेनी वर्ड्स हैव टू मीनिंग्स, डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग. बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनकी दो मीनिंग्स हैं, denotative meaning dictionary meaning and then connotative. So it is very important to note that not all connotations are complete only positive or solely negative. ऐसा नहीं है कि हर connotation जो है वो positive है या हर connotation negative है. So we must know about them very carefully. किसी को कुछ पूछना है? ये Mr. Abedullah want to say something? So connotation set the tone when writing and speaking, clarify a person's intentions. It is very helpful in your studies. आपके studies में इसका इंतहाई ज़्यादा अमल दखल है. when you study literature, so you must know about connotative, denotative meaning. They can elicit certain emotions or reactions or help to provide different impressions of things. Function इससे क्या है कि in literature connotation paves way for creativity. You can have creativity by using figure of speech like metaphor, simile, symbolism and personification. इनका इस्तेमाल करके आप creativity कर सकते हैं. This is all about connotation. If writers had contented themselves with only the literal meanings, there would have been no way to compare abstract ideas to concrete concepts. तो क्या कह रहे हैं? अगर राइटर सिर्फ अपने आप को लिटरल मीनिंग तक महदूद कर लेते तो फिर नई चीजें हमारे पास ना आती, ना ही हमारे कॉन्ट्रास्ट आता, ना ही हमारे कॉन्क्रीट चीजें आती. Therefore, connotative meanings of words allow writers to add to their works dimensions that are broader, more clear, vivid and fresher. तो उससे क्या होता है? राइटर्स के पास एक किस्म का समझना बहुत they have a lot of choices and they have a lot of varieties and they can show all these things to their readers. फिर हमारे पास है collocation. So in collocation, definitely I have told you that which word suits which with word. This is what we have collocation. Very very important thing in semantics. And without studying collocation, you cannot. No one can speak any language properly. I'm talking about English, so no one can speak English properly or can write English properly, can communicate in English properly. Why? Because we are not native speakers. We are learning English as a second language, and that is why we must know about collocation. Collocation is something that will make you speak like a native speaker. यानी किसी की बदौलत आप native speaker जैसा बोल सकेंगे. मिसाल के तौर पे फास्ट फूड होता है, क्विक फूड नहीं होता. क्विक शावर तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप फास्ट शावर नहीं कह सकते. क्विक मील तो आप कह सकते हैं, बट यू कांट से फास्ट मील.
कमिट मर्डर तो आप कह सकते हैं, बट यू कांट से डू मर्डर, ठीक है। अगरचे ग्रामेटिकली ये अननेचुरल इंग्लिश भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन आप वो उस क्विक का फूड के साथ जोड़नी है, इस तरह डू का मर्डर के साथ जोड़नी है। जोड़ कोलोकेशन को कहते हैं, कोलोकेट नहीं करता वो, तो इनका आपस में फिट नहीं है एक दूसरे के लिए। तो जो फिट है वो यही है, फास्ट फूड, कमिट मर्डर। तो इंग्लिश में इसकी बहुत जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लैंग्वेज सेंटर ये असल में ये इसी लेवल पे पढ़ाया जाता है, इवन लैंग्वेज सेंटर में भी नहीं बताते स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट उस लेवल पर पहुंच के ही निकल जाता है, चला जाता है, छोड़ जाता है, वो समझते हैं मैंने अंग्रेजी सीख ली, ठीक है। और जब एडवांस लेवल आता है जहाँ पे उसको ये चीज़ें बतानी होती है, वो स्टूडेंट चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जाके गलत अंग्रेजी बोल रहा, बोल तो रहा होता है अंग्रेजी, लेकिन ज़्यादातर गलत बोल रहा होता है, रॉन्ग ब्रोकन इंग्लिश बोल रहा होता है। Why should we learn collocation? So our language will be more natural and more easily understood. अगर आप इसको सीखेंगे, so language will be more natural and it will be easily understood by everyone. ठीक है। मैंने मिसाल दी कि अगर आप गलत बोलेंगे तो आप बोलेंगे ओपन द फैन, अगला आप पे हंसेगा। आप स्विच ऑन द फैन कहेंगे और शट डाउन द कंप्यूटर होता है, क्लोज द कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। So we will have alternative richer ways of expressing ourselves. It is easier for our brains to remember and use language in chunks or blocks rather than, और इससे आप लैंग्वेज भी आसानी से याद इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, बिकॉज आपको कोलोकेशंस मिलेंगे चंक्स में और ब्लॉक्स में। इट विल हेल्प इन ब्यूटिफाइंग द लैंग्वेज, उससे आपकी लैंग्वेज में खूबसूरती और निखार पैदा हो जाएगा, नॉट ओनली इन स्पोकन बट ऑल्सो इन रिटन। How to learn collocations? So be aware of collocation and try to recognize them when use or hear them. Use online dictionaries. If you have offline dictionaries, so you can also use offline dictionaries. If you have book form dictionaries, so you can use book form. Dictionaries are a very good source of collocation because they will show. Remember, dictionaries में भी advanced learners होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, वेबस्टर, ये वो डिक्शनरीज है जो एडवांस लर्नर्स और ऑथेंटिक डिक्शनरीज हैं। इनके अंदर आपको बेशुमार एक मिसालें मिलेंगी जो कि कॉलोकेशंस की हैं। इसके लिए आपको ट्रीट कॉलोकेशन एज अ सिंगल ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, उनको एज अ सिंगल ब्लॉक ट्रीट करें। व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड, राइट डाउन द वर्ड्स दैट कॉलोकेट विद इट, जो उसके साथ कॉलोकेट करता है उसको आप लिखें। रीड एज मच एज पॉसिबल एंड रीडिंग इज एन एक्सीलेंट वे टू लर्न वोकैबुलरी एंड कॉलोकेशन इन कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरली। जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग करें। रिवाइज बट यू लर्न रेगुलरली, प्रैक्टिस यूजिंग न्यू कॉलोकेशन इन कॉन्टेक्स्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर लर्निंग देम। जिस तरह से आप कॉलोकेशन को याद कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलोकेशन आपके सामने है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस किस नाउन के साथ कौन सा नाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे ग्रामर बुक हो गया, ग्रामर बुक का ग्रामर का बुक के साथ कॉलोकेट करता है। नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस एक्सप्रेशन। गालिबन आप लोग अगर याद हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ चीज़ें हम लोग पहले गलत समझते थे, लेकिन अब वो हम जब खुद स्टडी की, रिसर्च की, तो पता चला यार वो तो हम गलत थे और चीज़ें दुरुस्त थी। जैसे मिसाल के तौर पर ये सड़क कहाँ जाती है, तो स्टूडेंट्स जो थे वो हमने सुना था कि यार ये सड़क कहाँ जाती है, तो ये सड़क कहाँ जाती है, तो हमने कहा कि वेयर डज दिस रोड गो, तो लोग हंसना शुरू हो गए, ठीक है। कि गो आपने तो लिटरल तर्जुमा कर दिया कि ये सड़क तो वहीं रहती है, जाती कहीं नहीं। तो जब इसको हमने स्टडी किया, ठीक है, जब हमने इसको स्टडी किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, स्टडी करने में कोई इतना टाइम भी नहीं लगा, जो रिजल्ट आया वो आपके सामने, ये देखें आप। सिर्फ देखना होता है, थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़ा स्टडी करना होता है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें सुने। ये देखें, आपको मैं दिखाया तो लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ताकि आप भी खुद पढ़ सकें, कर सकें। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी? देखिए इसकी गो की कौन सी मीनिंग है, ये गो की कहाँ गया, टाइम या लीड की मीनिंग में 13, मीनिंग नंबर 13। So you can see over here, where does this road go? Can you see? Yes, sir. अब वो जो एक मिसकॉन्सेप्शन था कि यार ये तो गलत है, वो आपके सामने सब कुछ, but the trail goes north at this point, want a rope that will go from, यानी कि ये रस्सी यहाँ से लेकर नीचे तक जानी चाहिए, वो भी आपके सामने है। I want a rope that will go from the top window to the ground, ठीक है। अब ये आप खुद नहीं कह सकते, आप हर जगह खुद नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें कॉलोकेशन में मिल गई। अब आप इसकी मदद
से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें वी हैव टू फॉलो देम, वी आर नॉट सपोज टू मेक आवर ओन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट। ये कॉलोकेशन टाइप्स है। एंड देन यू हैव सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलोकेशन, वो आपको बता चुका हूँ उसकी अहमियत क्या है। What is register? Register is again a very important topic in semantics. Register is called the technical use of word, and it is very commonly used in documentation. Documentation में बहुत आम इस्तेमाल होता है। In professional language, professional life, we use it very commonly. In linguistic, register refers to the variety of language used in a particular social setting for a particular reason. अब भुकला जो है वो अपना रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा टीचर्स अपने डोमेन में अपना रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस वर्कर्स अपने डोमेन में अपना रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर often refers to the degree of formality of language, but in a more general sense it means the language used by a group of people who share similar work or interest. जैसे डॉक्टर्स होंगे वो अपना अपने रजिस्टर, उनके कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बुक, अब रजिस्टर के अंदर आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक आपके पास है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व करवाना, और फॉर्मल वर्ड इसका रिजर्व। चेक फॉर्मल वर्ड है वेरीफाई, गेट फॉर्मल वर्ड है रिसीव, हेल्प फॉर्मल वर्ड है असिस्टेंस, से सॉरी को अपोलोजाइज कहेंगे, बिगिन कमेंस, ईट को कंज्यूम भी कहते हैं, ठीक है। थ्रो आउट को इजेक्ट कहेंगे, formal informal words. So this is what we have. Now if you have any question you can ask me please. ये हमारे पास फर्स्ट सेशन थे। सेकंड सेशन का जो आई हैव गिवन यू द समरी और आई हैव गिवन द रिवीजन ऑफ फर्स्ट सेकंड टू फर्स्ट सेशन टू सेशन नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6। कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर थोड़ा सा इसको आप रिपीट कर दीजिएगा जो आप लेक्चर्स दिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अभी कर देता हूँ ताकि आपके नॉलेज आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ यू कैन आस्क मी। सर रजिस्टर समझा दें थोड़ा। Register actually is called the technical use of words. For example, delete, D-E-L-E-T-E, delete. Delete क्या है? What is called delete? Delete का मतलब remove करना होता है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होगा इसका? कंप्यूटर में। You cannot use delete, the word delete in your everyday life. In everyday life we use what? Remove. ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वर्ड से लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हैं किसके लिए? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। व्हेन डॉक्टर्स टॉक टू ईच अदर सो दे यूज दोस वर्ड्स, एंड व्हेन नर्सेस टॉक टू ईच अदर दे यूज दोस वर्ड्स। जब वो आम लोगों से बात करते हैं तो वो उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे को तो वो एक दूसरे से समझ तो जाएंगे, लेकिन आम लोगों के लिए फिर उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे या उसको रिफ्रेश करेंगे। इसी तरह टीचर्स एक दूसरे से जब बात करते हैं तो दे यूज सर्टेन वर्ड्स। मैंने आपसे कहा कि हम कंप्यूटर के टाइम उसमें हम डिलीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नोटिस में आपको नॉर्मली क्या मिलेगा? कमेंट्स का इस्तेमाल मिलेगा। यू विल फाइंड द यूज ऑफ कमेंट्स इन नोटिस कि द क्लासेस कमेंसेस ऑन 25th of December, ठीक है, बिगिन नहीं होगा। इस तरह से आप वहाँ पे नोटिस में मजीद देखेंगे तो अपोलोजाइज, वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। इनकन्वीनियंस के आपके पास फॉर्मल वर्ड्स है। इन नॉर्मल लाइफ, इन ऑर्डिनरी लाइफ यू से ट्रबल, लेकिन आप जब नोटिस में किसी को इन्फॉर्म करेंगे तो वो नोटिस फॉर्मल होते हैं, तो आपने वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होगा? इनकन्वीनियंस या अपोलोजाइज, अपॉलॉजी, रिजर्व टिकट्स और सीट्स आर बीइंग रिजर्व, रिसीव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है? दिस इज ऑल रिलेटेड टू रजिस्टर, एंड रजिस्टर differs from group to group, from profession to profession, and this is definitely again I'm telling you that use that is very technical use hota hai, and it is very important in formal context. क्लोथ शॉप में चले जाएं आप तो उनके भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जाहिर है हमें उन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाएं रेगुलर बेसिस पर तो आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ड्रेसेस के कुछ होते हैं जैसे फॉर्मल ड्रेसेस, इनफॉर्मल ड्रेसेस हो गए, या ड्रेसेस के अंदर भी कुछ काइंड्स होती हैं, ठीक है। हमें नहीं पता उनके बारे में क्योंकि हम इतना खरीदते नहीं, लेकिन जो खरीदते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, तो वो उनके स्पेशल वर्ड्स होते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रजिस्टर। Yes, any other question?
Hurry up, time is running out. We have only 4 minutes right now. After this, we have another class. Remember, this will be the revision of from lecture number 7 to 13. मैंने आप लोगों से गालिबन अभी कहा था कि इंशाल्लाह in one class I will teach you about the use of dictionary at a higher level, at your level, advanced level. So that class is very important. Yes, please. कोई कुछ कहना चाह रहा था, जल्दी से कहिए, टाइम हमारे पास कम है. No question. Okay, then we will see. Then inshallah we'll see again after 5 minutes. Okay, 9:45. I'll meet you again with the next session. Okay, don't go away. Inshallah we'll see. I will see inshallah after 5 minutes. Allah Hafiz.